Hello, good afternoon, students. Hello, students. Good afternoon. I think getting my voice? Yes or not? Yes, sir. Okay, thank you, sir. Hello, students. I think screen आपको visualize हो रहा है? Please, yes or not? Screen visualize or not? Yes, Ria. Thank you. So, class. Now we are going to discuss Raman spectroscopy. So, before discussing this spectroscopy, now I want to revise the last spectroscopy, that is IR. In IR spectroscopy, when a molecule placed in IR radiations या IR spectroscopy, IR radiation strike with the molecule or atom or compound to get vibrate. So vibrate, so different type of vibration are observed. Stretching, bending, stretching 2 types, symmetric, asymmetric, bending 4 types, scissoring, rocking, wagging, twisting. So it is the most important. These are known as mode of vibrations. And related with this, how to calculate the number of fundamental vibration in the particular molecule. So there are 2 formulas for linear molecule. It is 3n minus molecule, and for bent molecule 3n minus 6, where n is the number of atom in the molecule. So if you know the molecule is bent or linear, so you can use the respective formula and calculate the number of fundamental vibrations in the compound. So this is the most important. One thing is the most important is in a fingerprint region. Fingerprint region, it is the range between the 1500 centimeter inverse to the 667 centimeter inverse. It is a fingerprint region. और इसको हमने डिस्कस कर दिया था लास्ट लेक्चर में. तो it is the most 2 things. One is the mode of vibrations. It is most important questions, and fingerprint region. It is the most important questions. In a UV visible spectroscopy, transitions of molecule, it is the most important. Chrome 4 oxychrome shift, these are also important, क्योंकि जो क्वेश्चन आता है oxychrome chrome 4 2 नंबर और जो शिफ्ट हैं एब्जॉर्प्शन बैंड एंड इंटेंसिटी शिफ्ट, दे आर आल्सो 5 मार्क्स. यानी कि जो ट्रांजिशंस हैं यू विजिबल में वो इंपॉर्टेंट है. आपके जो इंटेंसिटी बैंड शिफ्ट हैं ये इंपॉर्टेंट है.
मैंने बहुत कुछ आपको समझाया है, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो यही है, यानी कि टू क्वेश्चन फ्रॉम द यू विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड 2 क्वेश्चन फ्रॉम द IR. And now come to the Raman spectroscopy. What happens when light falls on a materials? Light, कोई भी लाइट हो बेटा, चाहे IR रेडिएशन हो, यू विजिबल रेडिएशन हो, या आपके ऑर्डिनरी लाइट हो, तो फॉलोइंग phenomena are observed. Number 1, transmission, reflection, absorption, luminescence, elastic scattering and inelastic scattering. Last two phenomena, इलास्टिक स्कैटरिंग एंड इनइलास्टिक स्कैटरिंग, ये दोनों ही आपके आएंगे इसी स्पेक्ट्रोस्कोपी में. मैं समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, आप समझ जाएं. तो टाइप ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी, दिस टाइप ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी डील्स not with the absorption of electromagnetic radiation but deals with the scattering of light with a molecule. यानी कि जब किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर लाइट को स्ट्राइक किया जाता है, या तो एब्जॉर्प्शन होता है या एमिशन होता है, अगर नहीं तो फिर लाइट स्कैटर कर जाती है. आपने एक एग्जाम में केमिस्ट्री में पढ़ा होगा अल्फा स्कैटरिंग मॉडल, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग मॉडल. तो वही उसी से रिलेटेड है. आपने देखा कुछ थ्रू आउट निकल जाते हैं, कुछ किसी एंगल से स्कैटर्ड हो जाते हैं, कुछ कम बैक कर जाते हैं. तो स्कैटरिंग का वहीं से आप लेंगे तो हमसे क्या होगा, लाइट आपकी स्कैटर्ड कर, पर्टिकुलर एंगल से स्कैटर्ड कर जाती है. सो इट इज द इंट्रो पार्ट ऑफ द रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी. इट इज डिस्कवर्ड बाय द सीवी रमन एंड के.एस. कृष्णन. सीवी रमन इज एन इंडियन साइंटिस्ट. इट इज डील्स विद द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय मॉलिक्यूल्स. रीजन इसका जो है, इट्स विजिबल रीजन में बेटा ये ऑब्जर्व होता है. 4800 सेंटीमीटर या 4800 नैनोमीटर. कोई भी आप चाहे एंगस्ट्रॉम में पता कर लीजिए, कर ले, याद कर लें, या इसमें याद कर लें. रमन स्कैटरिंग occurs only when molecule vibration cause a change in polarizability. This is a new word, polarizability. IR में क्या था, चेंज इन डाइपोल मोमेंट, नेट डाइपोल मोमेंट या परमानेंट डाइपोल मोमेंट. तो यहां पर न्यू वर्ड आया है पोलराइजेबिलिटी. पोलराइजेबिलिटी आगे आप डिस्कस करेंगे कि बिना इसको डिस्कस किए आप समझ नहीं पाएंगे क्या है. मॉलिक्यूल शुड बी एनाइसोट्रोपिकली पोलराइजेबल. अब ये एक वर्ड है एनाइसोट्रोपिकली पोलराइजेबल. अगर किसी भी मॉलिक्यूल को हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम प्लेस्ड करें, तो उसका जो मॉलिक्यूल इफेक्टिव, अगर कुछ इसमें चेंज आता है और चेंज नहीं आता है. अगर चेंज आ जाता है तो एनाइसोट्रोपिकली हो गया, और चेंज नहीं आता है तो वो आइसोट्रोपिकली हो गया. और इसको दूसरे तरीके से और समझ लीजिए. आपने देखा होगा क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड में कुछ प्रॉपर्टी होती है, रिफ्रैक्ट इंडेक्स वगैरह आइसोट्रोपिकली होती है आपके एमॉर्फस सॉलिड में, और एनाइसोट्रोपिकली होते हैं आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड में. इसका मतलब है कि अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड का मतलब बात की जाए तो उसमें डिफरेंट पॉइंट पर, डिफरेंट लैटिस पॉइंट पर आपका जो नेट डाइपोल, नेट आपकी जो वैल्यू होगी, चाहे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो या कोई और हो, वो वैल्यू चेंज हो जाती है. ये एक वेक्टर क्वांटिटी की तरह बिहेव करता है. यानी अगर वेक्टर क्वांटिटी इसमें अगर हमने अपोजिट डायरेक्शन चले गए तो वैल्यू जरूर सेम होगी, लेकिन डायरेक्शन उसका अलग हो जाएगा. तो इसका मतलब आपकी जो प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाएगी. तो एनाइसोट्रोपिकल मतलब है कि इफेक्टेड इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड, और आइसोट्रोपिकल मतलब है नॉट इफेक्टेड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इफ वी प्लेस्ड एनी मॉलिक्यूल इन द इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इसे बोलते हैं एनाइसोट्रोपिकल पोलराइजेबल. अब बात करते हैं पोलराइजेबिलिटी की. देखिए, देख रहे हैं लीनियर मॉलिक्यूल है H2 आपका. H2 का अगर मॉलिक्यूल के डाइपोल मोमेंट की बात की जाए तो डाइपोल मोमेंट होगा? नहीं होगा. लेकिन इलेक्ट्रॉन क्लाउड जरूर होगा. वन इलेक्ट्रॉन ऑफ द फर्स्ट हाइड्रोजन एटम, सेकंड इलेक्ट्रॉन इज सेकंड हाइड्रोजन एटम. तो जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, पोलराइजेबिलिटी इसकी वजह से अराइज होती है. तो ऐसा तो कोई मॉलिक्यूल है ही नहीं जो पोलराइजेबिलिटी ना हो.
जैसे यही लीनियर मॉलिक्यूल ले लिया, दिस इज यूजफुल फॉर द होमो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल आल्सो। आईआर में होमो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए फेवरेबल नहीं था, क्योंकि वहां पर डेड डाइपोल मोमेंट 0 हो जाता था। जैसे ही डाइपोल मोमेंट 0 हो जाता था वैसे ही आईआर इनएक्टिव हो जाता है वो। लेकिन यहाँ पे डाइपोल मोमेंट जरूर 0 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जरूर है, जिसकी वजह से ये आपका मॉलिक्यूल एज ए पोलराइजर हो जाएगा व्हेन इट इज प्लेस्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी ये थोड़ा सा आईआर के साथ कंपैरिजन है। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी इज अ फॉर्म ऑफ द वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी मच लाइक द इंफ्रारेड। देखिए यहाँ भी वाइब्रेशनल है और यहाँ भी वाइब्रेशन होता है, लेकिन रमन में रोटेशनल भी होता है और वाइब्रेशन रोटेशनल दोनों एक साथ भी होते हैं। आईआर में केवल आपका वाइब्रेशन होता है। तो यहाँ तो ध्यान देने वाली बात यह है, इन रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी वाइब्रेशनल and rotation takes place or both simultaneously takes place, आपका वाइब्रेशन होता है। However, whereas IR bands arise from a change in dipole moment, IR में क्या होता है, चेंज इन डाइपोल मोमेंट की वजह से आईआर बैंड्स मिलती हैं, लेकिन आपके रमन में पोलराइजेबिलिटी की वजह से आपका रमन बैंड्स मिलते हैं। एक्टिव रमन वाइब्रेशंस, यानी जो अगर कौन से कंपाउंड आपके एक्टिव वाइब्रेशंस होंगे रमन स्पेक्ट्रा देंगे। एक्टिव रमन का मतलब है कि कौन से कंपाउंड आपके रमन स्पेक्ट्रा देंगे। क्या जरूरत है, रिक्वायरमेंट इसकी, नीड चेंज इन द पोलराइजेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल ड्यूरिंग द वाइब्रेशन। पोलराइजेबिलिटी रिलेटेड टू द इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्ट्रीब्यूशन, किससे रिलेटेड है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्ट्रीब्यूशन से। जो मॉलिक्यूल के चारों तरफ अगर कोई इलेक्ट्रॉन है उसकी वजह से ये आपका रिलेटेड रहती है। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी इट इज बेस्ड ऑन इनएलास्टिक स्कैटरिंग, अभी जो वर्ड आया था पीछे इलास्टिक इनएलास्टिक स्कैटरिंग, बेस्ड ऑन इनएलास्टिक स्कैटरिंग of monochromatic light usually from a laser source in a visible infrared near the ultraviolet range। तो ये जो रेंज है ये नियर अल्ट्रावायलेट रेंज के साथ भी होगी, विजिबल रेंज के साथ भी होगी और आपका आईआर रेंज के साथ भी होगी। तो इट इज लाइट इज स्कैटर्ड बाय अ सैंपल वेरियस एंगल्स by momentary absorption of by virtue of the state of the re-emissions, यानी कि एब्जॉर्प्शन भी होगा एमिशन भी होगा। अब देखिए ये इंफ्रारेड का आपका एब्जॉर्प्शन रेंज है, ये रमन स्कैटरिंग है। यहाँ पे आपका जो मॉलिक्यूल एटम है वो आपके लोअर एनर्जी लेवल, यहाँ पर क्या बेटा, ये V का मतलब है वाइब्रेशनल लेवल, V0 V1, यहाँ से लोअर एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन आपका मूव किया, एटम मूव किया तो हायर वर्चुअल स्टेट में चला गया, एक्साइटेड होगा, फिर नीचे आ गया। तो इसमें एमिशन भी हो रहा है और आपका एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है। और ढंग से देखना है तो प्लीज यहाँ देख लीजिए, पोलराइजेबिलिटी का मतलब, पोलराइजेबिलिटी इज मेजर ऑफ द हाउ इजीली एन इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज डिस्टॉर्टेड बाय एन इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी अगर कोई मॉलिक्यूल है उसके अब उसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है मॉलिक्यूल के चारों तरफ, दिस इज नॉन ए डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन और द बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर उसको उस मॉलिक्यूल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो वो क्या कितना इजीली डिस्टॉर्टेड हो जाता है टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिक फील्ड। टिपिकली द इलेक्ट्रॉन क्लाउड विल बिलोंग टू द एन एटम मॉलिक्यूल और आयंस। तो किससे बिलोंग करेगा, अगर कोई एटम है या मॉलिक्यूल है या आयन है। The electric field could be caused by an electrode, और देखिए अगर electric field could be caused by an electrode or nearby a cation or anion, या तो इलेक्ट्रोड होगा, इलेक्ट्रोड की तरफ होना चाहिए रिफ्लेक्टेड, या कोई कैटायन और एनायन है तो वो भी आप जानते हैं कैटायन इलेक्ट्रोड कैसा होगा, या तो पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ भी जो कैटायन एनायन है ये भी नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करते हैं। सो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द अल्फा and mathematically is the ratio of the induced dipole moment P and applied electric field P upon E। तो ये हमारा जो क्या होगी बेटा, ये पोलराइजेबिलिटी। ये देखें ये एक छोटा सा पोलराइजेबिलिटी का एक एग्जांपल है। यहाँ पर आपका
नेगेटिव आयन सेम रखा हुआ है, लेकिन पॉजिटिव आयंस को मैंने चेंज करता गया हूं, यानी एक सिंगल चार्ज, डबल चार्ज एंड ट्रिपल चार्ज, यानी सोडियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। सोडियम पर +1 चार्ज, मैग्नीशियम +2 चार्ज, एल्यूमिनियम +3 चार्ज, लेकिन क्लोरीन के ऊपर ओनली 1 चार्ज। तो जब दोनों ही चार्ज सेम है तो जो डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो थोड़ा सा माइन्यूट है, लेकिन जैसे ही हमने कैटायन का चार्ज बढ़ाया वैसे ही आपका क्लोराइड जो आयन है वो थोड़ा और डिस्टॉर्टेड होगा टुवर्ड्स द कैटायन। इसी तरीके से एल्यूमिनियम जो 3 चार्ज हमने कैटायंस में लिया तो जो क्लोराइड एटम है वो और ज्यादा डिस्टॉर्टेड होगा टुवर्ड्स द एल्यूमिनियम। तो दिस इज नोन एज पोलराइजेबिलिटी। इसी तरीके से अब यहाँ क्या किया है, हमने एल्यूमिनियम को सेम रखा है और आपके हैलाइड आयंस को चेंज करते गए हैं। पॉजिटिव Al3 और ये माइनस, ये आपके इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है फ्लोरीन एटम, तो इसमें जो आपका होगा तो इसमें थोड़ा डिस्टॉर्शन कम है। इसी तरीके से क्लोरीन में और ज्यादा हो गया, जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती चली जाती है वैसे वैसे ये डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड ज्यादा बढ़ता जाता है। तो क्लोराइड में थोड़ा बढ़ गया, इसमें ब्रोमाइड आ गया तो और बढ़ गया, यानी अब देखते हैं टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, क्योंकि सबसे हाईली जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है दैट इज फ्लोरीन। तो इसका मतलब ये है, ये जो छोटा सा एग्जांपल मैंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, चाहे वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का हो या एटम के चारों तरफ हो, उसकी वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की जब रखें तो टुवर्ड्स द डिफरेंट चार्ज वो आपका डिस्टॉर्टेड हो जाता है। सो दिस इज नोन एज द पोलराइजेबिलिटी, यानी कि हाउ टू इजीली डिस्टॉर्टेड द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एन एटम, either that is cation or anion, towards cation and anion। अब ये छोटा सा एक एग्जांपल है कार्बन डाइऑक्साइड, और ये एक लीनियर मॉलिक्यूल है आपको दिखाई दे रहा है, और इसमें जो लीनियर मॉलिक्यूल है दैट इज IR इनएक्टिव। इसका मतलब है ये जो मॉलिक्यूल है कार्बन डाइऑक्साइड का इस ज्योमेट्री का, तो वो IR नहीं देगा और रमन एक्टिव है। IR क्यों नहीं देगा, इसका रीजन बता देता हूं मैं आपको। जो डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन है वो इस साइड में है, कार्बन टू ऑक्सीजन। तो डाइपोल मोमेंट का साइन का रीजन एक सिंबल होता है कि पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज स्पीशीज की तरफ मूव करता है, यानी पहले उस साइड बनता है पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज। तो इसका मतलब जो कार्बन है उस पर पॉजिटिव नेचर है, तो ऑक्सीजन है वो नेगेटिव नेचर है, तो जो डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होगा वो आपका पॉजिटिव टू नेगेटिव सेम इधर होगा। अब ये भी कार्बन है, ये भी ऑक्सीजन है, ये कार्बन, ये, जिसका मतलब का नेट डाइपोल मोमेंट 0। तो जब 0 है तो IR इनएक्टिव। आपने पहले बता दिया है IR के लिए डाइपोल मोमेंट का होना जरूरी है, इसका मतलब डाइपोल मोमेंट 0 हो गया, इसका मतलब ये IR इनएक्टिव हो गया। लेकिन जब डाइपोल मोमेंट 0 है लेकिन नेट डाइपोल मोमेंट 0 है लेकिन डाइपोल मोमेंट है, नेट का मतलब है कि इस CO का और इस CO का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, इसमें कैंसिल आउट हो जाएंगे, दिस इज नॉट ए नेट डाइपोल मोमेंट, लेकिन डाइपोल मोमेंट इज देयर। तो उसको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में हम पास कराएंगे, प्लेस करेंगे, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होगा, ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन या ऑक्सीजन वाले इलेक्ट्रॉन, तो डिस्टॉर्टेड किधर होंगे, टुवर्ड्स द कार्बन, तो ये रमन एक्टिव हो जाएगा। यानी ये कंपाउंड, ये जो मॉलिक्यूल है पोलराइजेबल है लेकिन चेंज इन डाइपोल मोमेंट 0 है। जब चेंज इन डाइपोल मोमेंट 0 है तो IR इनएक्टिव होगा, जब पोलराइजेबल होगा तो ये रमन एक्टिव होगा। सेम ये यहाँ पर है। अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं आप, मॉलिक्यूल सेम है लेकिन डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट सेम साइड में है, इसका मतलब ये ऐड हो जाएगा। तो चेंज इन डाइपोल मोमेंट इज देयर, यहाँ पर कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ पर ये ऐड हो जाएगा, यहाँ पर कैंसिल आउट, इसे IR इनएक्टिव था, यहाँ पर ये चेंज ऐड हो जाएगा तो IR एक्टिव हो जाएगा। और जैसे ही IR एक्टिव होगा तो जो मॉलिक्यूल जो है ये आपका, इसमें पोलराइजेबिलिटी 0 हो जाएगी, इसका मतलब ये रमन इनएक्टिव हो जाएगा। तो ये छोटा सा एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि इस केस में अगर आप देखेंगे CO2, इसे बोलते हैं सिमेट्रिक मॉलिक्यूल, इसे बोलते हैं असिमेट्रिक मॉलिक्यूल। अगर मॉलिक्यूल में एसिमेट्री आ जाएगी ड्यू टू द डाइपोल मोमेंट तो बेटा वो IR एक्टिव होगा, और इसमें एसिमेट्री नहीं आएगी तो आपका रमन एक्टिव होगा। तो ये जो
एग्जाम्पल है वाई CO2 इज द IR इनएक्टिव एंड रमन एक्टिव, या IR एक्टिव रमन इनएक्टिव। तो इसमें जो पिक्चर है, पिक्चर का ध्यान देना जरूरी है। आप चाहो तो इसका स्नैप ले सकते हैं कि वाई CO2 व्हेन CO2 इज IR एक्टिव या रमन एक्टिव या रमन इनएक्टिव या रमन एक्टिव, वो IR एक्टिव। तो रीजन इसका यही है कि इस फिगर को बनाना है आपको। इसी तरीके IR रमन आर कॉम्प्लीमेंट्री, कैन कॉज केसेस वेयर वाइब्रेशन इन बोथ IR एंड रमन एक्टिव। अब SO2 को ले लीजिए बेटा, SO2 नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है, कार्बन डाइऑक्साइड की तरह नहीं है। तो नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है, सिमेट्री आ गई, डायपोल मोमेंट भी इसमें होगा, तो IR भी मिल जाएगा आपको और रमन भी मिल जाएगा। इसका कोई इससे आपको मतलब वो नहीं है, इतना ज्यादा नहीं आपको डिटेल में जाना है। थ्योरी, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट when a substance which may be gaseous, liquid or even solid is irradiated with the monochromatic light of a definite frequency nu, a small fraction of light is scattered in a form of Rayleigh and Raman. ध्यान समझना, जब भी लाइट, when a molecule placed in a Raman spectroscopy, the falling light या incident light strike on a molecule, they become scattered. स्कैटर्ड टू टाइप से होगा, नंबर 1 रैले स्कैटरिंग एंड रमन स्कैटरिंग। लेकिन टोटल देखा जाए तो 1 पार्ट इन अ मिलियन, यानी 1 पार्ट अगर स्कैटर्ड होगा इन 10⁻⁷ उसमें, तो ये 1 पार्ट में ही आपका रैले और रमन स्कैटरिंग मिलेगा। रैले कब होता है, रमन कब होता है, ये मैं अभी आपको बताऊंगा आगे। तो अब यहां देख लीजिए, ये जो फिगर है, ये जो लगा रखा है 0 1 2 3 4, ये है इसके वाइब्रेशनल लेवल। और आपको याद है स्टार्टिंग मैंने बताया था, एक पूरा ग्राफ लेके इसी तरह लाइंस थी उसमें, तो उसमें मैंने बताया था ये एनर्जी लेवल भी थी उसमें, आपके वाइब्रेशन लेवल भी थे और आपके रोटेशनल लेवल भी थे। तो ये इस समय यहाँ पर है वाइब्रेशन लेवल। तो 0 1 2 3 4 वाइब्रेशन एनर्जी स्टेट्स या बायो एनर्जी लेवल, ये वर्चुअल एनर्जी लेवल्स। तो ये इंफ्रारेड एब्जॉर्प्शन है, ये लाइट गई तो ये आपका ऑपरेशन हो गया। ये अब बात करते हैं रमन की, ये है रैले लाइन या रैले स्कैटरिंग। देख रहे हैं बेटा, यहाँ पे जो की हाइट, ब्लू एरो और रेड एरो की जो हाइट है दोनों की सेम है। इसका मतलब कह सकते हैं जो ब्लू लाइन है इट इज नॉन एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, और जो रेड लाइन है इसे बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ स्कैटर्ड लाइट। तो दोनों ही सेम है। जब दोनों सेम है इसका मतलब अगर हम इंसिडेंट लाइट को न्यू आई से रिप्रेजेंट करें और स्कैटर्ड फ्रीक्वेंसी को हम न्यू एस से रिप्रेजेंट करें, तो यहाँ पर न्यू आई इज इक्वल टू द न्यू एस। जब दोनों ही फ्रीक्वेंसी बराबर हैं, इंसिडेंट लाइट की भी और स्कैटर्ड लाइट की फ्रीक्वेंसी बराबर हैं, तो इसका मतलब क्या है, ना तो एब्जॉर्प्शन होगा ना एमिशन होगा, केवल क्या होगा, स्कैटरिंग होगी। तो न्यू आई इज न्यू एस। तो इसका आप ब्लैक बॉडी की तरह समझ लीजिए इसको। ब्लैक बॉडी क्या होता है, परफेक्ट एब्जॉर्बर, परफेक्ट एमिटर। लेकिन यहाँ पर वो नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या है, इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी बराबर है और स्कैटर लाइट की फ्रीक्वेंसी बराबर है। तो इसका मतलब है न्यू आई इज इक्वल टू न्यू एस, तो रैले लाइंस मिलती हैं। इसका मतलब यहाँ पर बॉडी आपकी है इलास्टिक, समझ लीजिए न्यू आई इज इक्वल टू न्यू एस, तो बॉडी इलास्टिक हो गई, तो आपको मिला ऑब्जर्व द रैले लाइंस। लेकिन जब न्यू आई ये न्यू एस यहां तक, इसका मतलब न्यू आई इज ग्रेटर देन न्यू एस हो गया, इसे बोलते हैं स्टोक्स लाइन। इसी तरीके से न्यू आई ये ब्लू लाइन और पर्पल लाइन आपकी हो गई स्कैटरिंग लाइंस या इंसिडेंट स्कैटरिंग लाइंस। तो यहाँ पर न्यू आई इज लेस देन न्यू एस। तो 3 कंडीशन आपको मिली, न्यू आई इज इक्वल टू न्यू एस, दूसरी कंडीशन मिली आपकी न्यू आई इज ग्रेटर देन न्यू एस। देख लीजिए हाइट देख लीजिए इनका, यहाँ पर ये यहाँ से यहाँ तक जाता है, ये यहाँ से यहाँ तक आता है, तो इस केस में क्या होगा, न्यू आई इज ग्रेटर देन न्यू एस। यहाँ देख लीजिए, यहाँ फर्स्ट लेवल से शुरू होता है इसमें, तो आता जाता कहाँ तक है, 0 लेवल तक,
इसका मतलब है जो न्यू आई की जो फ्रीक्वेंसी है, जो इसकी इंसिडेंट लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है न्यू आई इज लेस देन दैट ऑफ न्यू एस। तो तीन कंडीशन मिलता है, न्यू आई इज टू न्यू एस, तो रेले लाइंस मिलेंगी आपको, बॉडी इलास्टिक होगी यानी मॉलिक्यूल इलास्टिक होगा। फिर दो कंडीशन आती है, न्यू आई इज ग्रेटर देन न्यू एस या न्यू आई इज लेस देन न्यू एस। इस केस में बॉडी इन इलास्टिक होगी, दोनों ही केस में बॉडी इन इलास्टिक होगी। यह है रैले स्कैटरिंग, और ढंग से यहां समझ लीजिए, ये आपके इनकमिंग फोटोन्स हैं, आउटगोइंग फोटोन्स हैं, यानी कि ये आपके इंसिडेंट फोटोन्स हैं, ये आपका स्कैटर्ड फोटोन्स हैं। तो ये आपकी लेवल्स हैं, लेवल जो आपकी स्कैटरिंग जो लाइट है, ये आपका यहाँ तक गया, वही फ्लोट के फिर यहाँ तक आ गया है, यानी कि इसके एमिट होकर ये ऑब्जर्व हुआ है, ये एमिशन हुआ है, और फिर ये स्कैटरिंग लाइट है। इसका मतलब ये है कि इस केस में न्यू आई इज इक्वल टू न्यू एस, तो ये लिखा हुआ है न्यू आई इज इक्वल टू न्यू एस, तो इसे बोलते हैं रैले स्कैटरिंग। ये कब होगा? जब बॉडी सब्सटेंस आपका इलास्टिक होगा। तो फिर समझ लीजिए, रैले लाइन फाउंड दैट इफ द स्कैटर्ड लाइट इज ऑब्जर्व एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट लाइट, यानी कि कहने का जब है मतलब है, जब इंसिडेंट लाइट के जो वो एंगल है, तो और स्कैटर्ड लाइट का एंगल है वो राइट एंगल होना चाहिए, तो found have the same frequency as that the incident light, it depends upon the nature of the substance। इलास्टिक होना चाहिए, इलास्टिक है इसलिए न्यू आई इज इक्वल टू न्यू एस है। अगर है तो इसे बोलते हैं रैले स्कैटरिंग। अब है रमन स्कैटरिंग। रमन स्पेक्ट्रम में क्या है, अगर फ्रीक्वेंसी में चेंज आ जाता है, न्यू आई, देखिए यहाँ पे न्यू आई है ये वाला, और ये न्यू एस है, तो न्यू आई इधर हियर न्यू आई इज द ग्रेटर देन न्यू एस, तो न्यू आई ज्यादा है न्यू एस कम है। और सेकंड वाले में आपका है न्यू आई कम है, न्यू आई ज्यादा, न्यू एस ज्यादा है, तो यहाँ भी डिफरेंस होगा फ्रीक्वेंसीज में, यहाँ भी डिफरेंस है, तो दिस डिफरेंस इज नोन एज द रमन फ्रीक्वेंसी, रमन स्कैटरिंग और रमन शिफ्ट। डेल्टा न्यू इज इक्वल टू न्यू आई डिफरेंस न्यू एस, जो भी ज्यादा है उसमें से उसको माइनस कर देंगे तो बनेगा, मिलेगा आपको रमन फ्रीक्वेंसी या रमन स्कैटरिंग और रमन शिफ्ट। तो बॉडी कैसी होगी, सब्सटेंस कैसा होगा, इनइलास्टिक। यानी समराइज किया जाए तो जब भी किसी मॉलिक्यूल को रमन स्पेक्ट्रोस्कोप में रखते हैं तो लाइट इसको स्ट्राइक करती है, तो इसमें लाइट इसके बाद स्कैटर्ड हो जाती है। अगर इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी स्कैटर्ड लाइट की फ्रीक्वेंसी बराबर है तो फ्रीक्वेंसी आपको रमन आपकी होगी रैले स्कैटरिंग। अगर न्यू आई और न्यू एस में कोई डिफरेंस है तो वो होता है रमन फ्रीक्वेंसी या रमन स्कैटरिंग या रमन शिफ्ट। अगर एग्जाम में आए तो ये आपको ये फिगर बनाने जरूरी हैं, इसी से सबको, अगर आप तीनों को मिला दीजिए, रमन रैले लाइंस और रमन स्कैटरिंग को मिला दीजिए तो बनता है रमन इफेक्ट। अगर आप पूछा व्हाट इज अ रमन इफेक्ट, तो आपको दोनों को मिला के लिख देना है, तो ये रमन इफेक्ट हो गया। आपसे पूछा व्हाट इज द हाउ टू डिफाइन द रैले लाइंस या रैले स्कैटरिंग, तो केवल रैले लाइन वाला फिगर बनाना, रैले लाइन का लिखना है, इसमें आपको लिखना न्यू टू न्यू एस। अगर आपसे कहा जाए हाउ टू डिफाइन द रमन स्कैटरिंग, तो वहां पर आपको डेल्टा न्यू इज टू न्यू आई डिफरेंस न्यू एस। इस केस में आपका डिफरेंस होगा, बॉडी इनइलास्टिक होगी। इसको एक बार फिर यहाँ लिख दिया गया है। अब जब न्यू आई इज लेस देन न्यू एस है, न्यू आई इज ग्रेटर देन न्यू एस, देखिए न्यू आई इज ग्रेटर देन न्यू एस, तो होंगी स्टोक्स लाइन। अब हमने क्या किया, रमन स्कैटरिंग को टू टाइप में डिवाइड कर दिया है, रमन स्कैटरिंग को टू टाइप्स में। कब? नंबर वन, न्यू आई इज ग्रेटर देन न्यू एस, तो इसे बोलते हैं स्टोक्स लाइन। और स्टोक्स लाइन का फिगर यही है, पहले वाला ही जो पहले दिखा चुके हैं हम, फिगर यही है लेकिन नाम दूसरा आ गया है, स्टोक्स लाइन। अगर इफ न्यू आई इज लेस देन न्यू एस तो उसे बोलते हैं एंटी स्टोक्स लाइन। एंटी स्टोक्स लाइन या एंटी स्टोक्स रमन स्कैटरिंग या स्टोक्स रमन स्कैटरिंग, ये स्टोक्स लाइन की जगह बोल सकते हैं स्टोक्स रमन स्कैटरिंग। एंटी स्टोक्स बोलते हैं एंटी रमन स्कैटरिंग।
स्टॉक की जगह रमन वर्ड आपको यूज करना है। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। केवल आपको हाइट ऑफ द लेवल से आपको ये बताना है कि किस तरीके से ज्यादा है, किस तरीके से कम है। तो आई थिंक it's a best way to represent the nu I is less than the relationship between the nu I and nu S. Either they are equal or they are different. ये देख लीजिए थोड़ा सा, यहाँ मैंने और डिटेल में दिखाया गया है स्टॉक्स लाइन एंटी स्टॉक्स लाइन को। ये 0 लेवल से शुरू हुआ है, तो हायर लेवल तक गया है, और ये हायर लेवल से फर्स्ट लेवल तक आ पाया है, तो इसे बोलते हैं स्टॉक्स लाइन। इस केस में अमाउंट ऑफ एनर्जी ज्यादा है अमाउंट ऑफ स्कैटर्ड से। इधर देख लीजिए एंटी स्टॉक्स लाइंस में जो एनर्जी आपने दी है, जिस एनर्जी की फ्रीक्वेंसी आपने दी है, रेडिएशन डाला है, वहां से जो आपको मिला है उसमें ज्यादा है। तो इस तरीके से, तो सीधी सिंपल सी कहानी इतना ही है कि ये यहाँ पर हमारा जो डिफरेंस आएगा पॉजिटिव होगा, यहाँ नेगेटिव होगा। न्यू आई इज द न्यू, तो अगर पॉजिटिव हुआ ये नेगेटिव, तो नेगेटिव होगा तो स्टॉक एंटी स्टॉक्स लाइन बनेंगी, पॉजिटिव होगा तो डिफरेंस पॉजिटिव है तो आपके स्टॉक्स लाइन बनेगी। इस देख लीजिए, ये थोड़ा मैंने ग्राफ के फॉर्म में दिखा दिया है। बीच में ये हैं आपकी रैले लाइंस, और इधर जो है आपकी स्टॉक्स लाइन लो एनर्जी लेवल में मिलती हैं और एंटी स्टॉक्स लाइन हायर एनर्जी लेवल में मिलती है। लेकिन में जो बैंड है, जो हाइट ऑफ द पीक है, वो कम हो जाती है, लाइक दैट। यानी और इसे कह सकते हो जो हमारा क्रस्ट है, ये ट्रफ क्रस्ट ये है, इसकी जो हाइट है एंटी स्टॉक्स में कम रहती है और स्टॉक्स में ज्यादा है, और लोअर एनर्जी लेवल में मिलती है स्टॉक्स लाइन, एंड एंटी स्टॉक्स में हाई एनर्जी लेवल में मिलती है। ये थोड़ा सा इसका लेवल है। रैले लाइंस, the rally scattering is higher than the stocks line and anti stocks line. तो रैले लाइंस ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एमिशन ऑब्जर्व्ड इंटेंसिटी है। रैले लाइंस के लिए इसके ज्यादा स्कैटरिंग एनर्जी चाहिए, स्टॉक्स लाइन के लिए थोड़ी सी रैले लाइन से कम चाहिए, और एंटी स्टॉक्स के लिए एकदम बहुत कम चाहिए। ये पहले ही दिखा चुके हैं इसको हम। ये रमन इफेक्ट में पहले बता चुका हूं। रैले लाइंस रमन लाइंस को एक साथ कंबाइन करके लिखेंगे तो हमारा रमन इफेक्ट बनता है। तो कैसे लिखना है मैं एक बार फिर बता दे रहा हूं मैं। व्हेन ए लाइट स्कैटर्ड फ्रॉम ए मॉलिक्यूल, मोस्ट ऑफ फोटॉन्स आर इलास्टिकली स्कैटर्ड और inelastically scattered. If substance is elastically scattered, then observed lines are Rayleigh lines. If scattered, if radiation inelastically scattered, then to observe the Raman lines, or Raman lines are further divided into categories: Stokes line and anti-Stokes line. Stokes lines observed at nu I when nu I is greater than nu S, and anti-Stokes line observed at when nu I is less than nu S. बस दोनों कंबाइन करके लिखना है, ये आपका रमन इफेक्ट बन जाता है। अब ये रमन इफेक्ट और इंफ्रारेड, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी और इंफ्रारेड में डिफरेंस। It is due to the scattering of light by the vibrating molecule. यहाँ पर वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल सकता है, रोटेशनल मॉलिक्यूल भी आ सकता है, और दोनों भी आ सकता है। इसी तरीके से इट इज रिजल्ट द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय द वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल। यहाँ पर एब्जॉर्प्शन होता है, यहाँ पर आपका स्कैटरिंग होती है। रमन स्कैटरिंग के मिलती है और इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोप को एब्जॉर्प्शन के थ्रू मिलती है, लेकिन दोनों ही वाइब्रेशन है। द वाइब्रेशन इज रमन एक्टिव इफ इट कॉज अ पोलराइजेबिलिटी। वाइब्रेशन कब रमन एक्टिव होगा? जब इसमें पोलराइजेबिलिटी, चेंज इन पोलराइजेबिलिटी होगा। लेकिन ये कब होगा? जब चेंज इन डाइपोल मोमेंट होगा। जो मेन डिफरेंस है डाइपोल मोमेंट, यहाँ पोलराइजेबिलिटी। द मॉलिक्यूल नीड टू possess a permanent dipole moment. यहाँ पर परमानेंट डाइपोल नो नीड, जरूरत नहीं है, यहाँ पर जरूरत है। वाटर कैन यूज एज सॉल्वेंट। रमन में हम वाटर सॉल्वेंट यूज कर सकते हैं, और आईआर में वाटर सॉल्वेंट यूज नहीं कर सकते। इसका रीजन यह है कि वाटर सॉल्वेंट अगर यूज करेंगे तो ये हमारा जो आईआर है, इसमें कुछ कंपाउंड वाटर में डिसॉल्व हो जाएंगे, तो अब उसको हम यूज नहीं कर सकते।
और इसमें एक चीज और है, इसका जो आपका फिल्टर जो बना होता है वो केवीआर का बनता है, केवीआर का बना होता है, तो केवीआर आपका वाटर सॉल्युबल है, लेकिन रमन में ऐसा नहीं है। अगर इसलिए यहाँ सॉल्वेंट यूज कर लेते हैं वाटर, और अगर यहाँ पे सॉल्वेंट यूज करेंगे आईआर में तो केवीआर इसमें डिजोल्व हो जाएगा, तो आपका आईआर खराब हो जाएगा, यानी आईआर इंस्ट्रूमेंट खराब हो जाएगा। सैंपल प्रिपरेशन इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, इसमें सैंपल प्रिपरेशन इज इजली, इसमें डिफिकल्ट नहीं है, इसमें आपको बनाना पड़ेगा। सैंपल इज एलोबरेट गैसियस सैंपल कैन बी रेयरली बी यूज्ड, यहाँ पर किसी भी स्टेट में यूज कर सकते हैं। यहाँ पर सॉलिड और लिक्विड ही चलेगा, गैस नहीं चल सकता, यहाँ पर तीनों ही चल जाएंगे, सॉलिड गैस लिक्विड। गिव्स एन इंडिकेशन ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर इन अ मॉलिक्यूल, ये आयनिक मॉलिक्यूल के लिए पॉसिबल है। ये इसका जो कॉस्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन है वेरी हाई है रमन का, इसका थोड़ा सा कम एक्सपेंसिव है। ये डिफरेंस था रमन और आईआर में, ये थोड़ा सा डिफरेंस और मैं यहाँ दिखाई दे रहा हूँ। आईआर में वाइब्रेशनल मोड से ऑब्जर्वेशन होता है, यहाँ पर वाइब्रेशन रोटेशनल और बोथ मोड्स मिलते हैं। चेंज इन डायपोल मोमेंट की वजह से होता है, या चेंज इन पोलराइजेबिलिटी की वजह से होता है। एक्साइटेशन ऑफ मॉलिक्यूल एक्साइटेड बाय द वाइब्रेशन स्टेट, मोमेंटरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड द बॉन्ड, ये बॉन्ड के अराउंड चलता है। सिमेट्रिक वाइब्रेशन एक्टिव है ये वाला, ये सिमेट्रिक वाइब्रेशन एक्टिव है। और वाइब्रेशन हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, आईआर में सिमेट्रिक एसिमेट्रिक दोनों ही होते हैं, यानी जो मॉलिक्यूल में सिमेट्रिक वाइब्रेशन होंगे वो आपका आईआर रमन एक्टिव होगा, जिसमें एसिमेट्रिक वाइब्रेशन होंगे इसमें आपका आईआर एक्टिव होगा। ये इसकी एप्लीकेशंस हैं। कैरेक्टरिस्टिक रीजन ऑफ डिफरेंट ग्रुप इन एज इन आईआर, यानी कि जो आईआर में एप्लीकेशंस हैं वो भी यहाँ यूज कर सकते हैं। रमन कोरिलेशन चार्ट अवेलेबल, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में इसका एक कोरिलेट चार्ट है जिससे हम बता सकते हैं ये कंपाउंड ये वाला है, ये कंपाउंड ये है। और रमन गुड फॉर एक्वस बेस्ड सैंपल, यानी जो सैंपल एक्वस डिजॉल्व हैं, तो हम आपको पता है रमन में एक्वस सॉल्यूशन यूज कर सकते हैं वाटर सॉल्वेंट, तो इसलिए वो सैंपल भी इसमें आप यूज कर सकते हैं। तो इट इज यूजफुल फॉर ए वेरी वैरायटी सैंपल्स ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक बायोलॉजिकल रिएक्शन बायोलॉजिकल फील्ड। तो रमन जो यूज होता है ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक और बायोलॉजिकल फील्ड में भी अच्छी तरह यूज कर सकते हैं इसको हम। ये बता देता है कि कौन सा ग्रुप इसमें है, कौन सा आपका वाटर सॉल्युबल है कि नहीं है, ये सारे एप्लीकेशंस। अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट रमन सेक्शन रूल, डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। मैं पहले ही बता चुका हूं, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी 3 टाइप्स पे हम बेस कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिनोमेना। रोटेशनल अगर है फिनोमेना तो रोटेशनल रमन बोलते हैं, वाइब्रेशनल फिनोमेना हो रहा था और वाइब्रेशनल रमन बोलते हैं, अगर दोनों ही हो रहा था रोटेशनल वाइब्रेशनल तो रोटेशनल वाइब्रेशनल रमन। यानी कहने का मतलब है अगर रोटेशनल अगर फिनोमेना है तो स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। अगर केवल वाइब्रेशनल ही हो रहा है तो स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। अगर दोनों ही हो रहे हैं तो दोनों को जोड़ के बता दीजिए रोटेशनल वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। So selection is described with the help of both motions, rotational as well as vibrational. ये देखिए ये समरी है रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्राइमरी सिलेक्शन रूल। मॉलिक्यूल प्रोजेक्ट मस्ट चेंज ड्यूरिंग द मॉलिक्यूल वाइब्रेशंस। स्पेसिफिक सिलेक्शन रूल स्टेट दैट, केवल आपको ये लिखना है, allowed rotational transition और डेल्टा जे इक्वल टू प्लस माइनस 2, ये रोटेशनल है। डेल्टा जे यहाँ पर है आपका रोटेशनल क्वांटम नंबर, और allowed vibrational transitions are डेल्टा v इक्वल टू प्लस माइनस 1। ये तब है जब आपका जब रोटेशनल में है तो ये मिलेगा, जब वाइब्रेशनल में है तो ये मिलेगा, जब दोनों में कंबाइन कर देंगे तो दोनों मिल जाएंगे इंक्लूडिंग 0। और डिटेल में और देख लीजिए इसको, तो ये सिलेक्शन रूल फॉर रोटेशनल डेल्टा जे इक्वल टू 0 प्लस माइनस 2। तो डेल्टा जे 0 प्लस माइनस 2, अगर 0 है समझना, अगर डेल्टा जे 0 है तो रेले लाइंस मिलती हैं कि डेल्टा न्यू इज 0,
क्योंकि न्यू आई और न्यू एस यहाँ पर जीरो आपके बराबर होते हैं, इसलिए न्यू डेल्टा न्यू जीरो हो जाता, तो रेले लाइंस मिल गई आपको यहाँ पर। इसी तरीके से जब डेल्टा जे इक्वल टू प्लस माइनस 2 है तो रमन लाइन मिलेंगी, और जब आपका डेल्टा जे -2 है तो स्टोक्स लाइन मिलेंगी, और डेल्टा जे +2 है तो एंटी स्टोक्स लाइन मिलेंगी। फिर देख लीजिए, अगर 0 है तो रेले लाइंस कि न्यू आई इज सेम एज न्यू एस, और यहां देखिए रमन लाइन कम मिलता है, तो न्यू आई और न्यू एस सेम नहीं है, तो जब डेल्टा जे नेगेटिव है 2 तो स्टोक्स लाइंस, डेल्टा जे पॉजिटिव 2 है तो एंटी स्टोक्स लाइन। अब ये आपका वाइब्रेशनल लेवल है, डेल्टा वी +0 ±1, डेल्टा वी अगर है तो रेले लाइंस, डेल्टा न्यू इक्वल टू 0, यहाँ पर न्यू आई और न्यू एस बराबर है इसलिए 0 है, और रमन लाइंस डेल्टा वी इक्वल टू +-1, तो ये रमन लाइंस होंगी। रमन लाइंस में हमने देखा 2 लाइंस होती हैं, स्टोक्स और एंटी स्टोक्स। जो नेगेटिव है वो स्टोक्स लाइंस है, जो पॉजिटिव वो आपका एंटी स्टोक्स लाइन है। और ये देख लीजिए, मैंने आप पीछे ग्राफ दिखाया था, आपको एक बार दिखा देता हूं मैं आपको। ये देख रहे हैं, अगर इसको आप सेंटर माने, रेले लाइंस को हायर एनर्जी में मिलता है तो लेफ्ट राइट में नेगेटिव साइन आता है और राइट में पॉजिटिव साइन आता है। तो वहां से अगर आप याद करना, वहां से याद कर सकते हैं कि इसको अगर रेले लाइंस को सेंटर मानेंगे आप, तो जो लेफ्ट साइड में होगा नेगेटिव साइन होगा, और जो राइट साइड होगा वो आपका पॉजिटिव साइन होगा, इस तरीके से। लेफ्ट साइड स्टॉक लाइन और राइट साइड एंटी स्टॉक्स लाइन। ये अब दोनों को कॉम्बो, दोनों को मिला दिया गया है। सिलेक्शन रूल फॉर रोटेशनल वाइब्रेशनल डेल्टा जे +-2, रोटेशनल डेल्टा बी +-1 और 2, ये आपका वाइब्रेशनल। तो डेल्टा वी 0 +-1 और डेल्टा जे 0 +-2। तो अगर डेल्टा वी डेल्टा जी दोनों 0 हैं तो रेले लाइंस दोनों को मर्ज करना है, कुछ नहीं करना है इसमें। डेल्टा बी +-2 डेल्टा पी +-2 अगर ये है तो +-1 -2 के लिए आपकी पी ब्रांच, और +1 और +2 के लिए 0 ब्रांच, और अगर आर ब्रांच और प्लस, ये थोड़ा सा बेटा इसमें थोड़ा सा और टेक्निकली है, तो इतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे हम। आप कह सकते हैं स्टोक्स लाइंस और एंटी स्टोक्स लाइंस। और अगर ये है डेल्टा बी +-1 और डेल्टा जी इक्वल टू 0, तो क्यू ब्रांच बोलते हैं जनरली इसको। जब ये होते हैं प्योर वाइब्रेशनल लाइन। ये था आपका रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसी के साथ में बेटा आप नेक्स्ट जो स्पेक्ट्रोस्कोपी वो है माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी। माइक्रोवेव बेसिकली इज अ रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। इट इज आल्सो कॉल्ड रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्योंकि देखिए वाइब्रेशनल हम आईआर पढ़ा चुके थे, रमन को दोनों का कॉम्बो था इसलिए पढ़ाया। अब रोटेशनल जो टोटली रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसे वो है आपका माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसका जो रेंज होती है वो होती है आपका माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम वेव लेंथ होती है 1 मीटर टू 1 मिलीमीटर, बहुत काफी कम वेव लेंथ है, 1 मीटर टू 1 मिलीमीटर। इसकी स्पेक्ट्रम फ्रीक्वेंसी देखी जाए तो 3 × 10⁻10 3 × 10⁻14 हर्ट्ज। इसको आप उसमें चेंज कर दीजिए तो मेगा हर्ट्ज में आ जाता है ये। तो केवल एक ही याद रखें, केवल इसको याद रखें, माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम वेवलेंथ 1 मीटर टू 1 मिलीमीटर। फ्रीक्वेंसी को इतना ज्यादा तवज्जो ना दें, क्योंकि अगर दोनों याद रखेंगे तो कोई ना कोई मिस कर जाएंगे। तो ये आराम से याद हो जाएगा वेवलेंथ इसका 1 मीटर टू 1 मिलीमीटर। रोटेशनल स्पेक्ट्रा इज शोन बाय द मॉलिक्यूल व्हिच हैज द डायपोल मोमेंट। ध्यान समझना, डायपोल मोमेंट आईआर भी दे रहा था, डायपोल मोमेंट यहां भी चाहिए, लेकिन रमन में डायपोल मोमेंट नहीं चाहिए, वहां पर रमन में पोलराइजेबिलिटी चाहिए। If a molecule rotates, its dipole moment also change in directional as dipole moment is vector quantity। तो अब तो ये बताइए आपको, जो आपका डायपोल मोमेंट तो वेक्टर क्वांटिटी होती है,
पॉजिटिव टू नेगेटिव इसका साइन होता है। तो यानी डाइपोल मोमेंट इज नेसेसिटी ऑफ द माइक्रोवेव एज वेल एज IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब थोड़ा सा ध्यान से समझें कि माइक्रोवेव और रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होगा, मॉलिक्यूल आपका रोटेट करेगा। आपको याद है मैंने बताया, व्हेन ए मॉलिक्यूल प्लेस्ड इन electromagnetic radiation strike the electromagnetic radiation on the molecule, the three type of motion takes place. One is electronic motions, second one is the vibrational motion, third one is the rotational motion. तीन तो ये इफेक्टिव मोशन होते हैं, लेकिन चौथा एक और होता है जो इनफेक्टिव ट्रांसलेशन, ऑलरेडी मैंने शुरू में बताया था। तो इसका मतलब है अगर इलेक्ट्रॉनिक मोशन होगा तो इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी से हाई एनर्जी में चला जाएगा। अगर वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल होगा तो वाइब्रेशन आपका लोअर एनर्जी से हाई एनर्जी में होगा, और अगर रोटेटिंग होगा तो रोटेशन आपका लोअर एनर्जी टू हाई एनर्जी लेवल होगा। आपने देखा होगा इन बिटवीन टू एनर्जी लेवल्स देयर वाइब्रेशन लेवल्स आर देयर, तो इन बिटवीन टू वाइब्रेशन लेवल देयर सो मेनी रोटेशन लेवल्स आर देयर। तो ये एक ग्राफ मैंने एक स्लाइड आपको दिखाई थी, इसलिए देखिए तो स्टार्टिंग में जब इंट्रो बताया था मैंने उस जगह। तो अगर मान लीजिए एनर्जी लेवल्स आपके पास हैं तो एनर्जी लेवल के अंदर आपके वाइब्रेशन लेवल होंगे, वाइब्रेशन लेवल के अंदर रोटेशनल लेवल होंगे। तो वी कैन से इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल के लिए आपको एनर्जी ज्यादा चाहिए, किससे कम, वाइब्रेशनल से कम, और रोटेशनल के लिए जो एनर्जी चाहिए वो वाइब्रेशन से कम चाहिए। यानी वी कैन से द रिक्वायर्ड एनर्जी फॉर इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन इज ग्रेटर देन द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द वाइब्रेशन, and energy required is greater than vibrational greater than the energy required for the rotational. फिर समझ लीजिए, इलेक्ट्रॉन एनर्जी EE is greater than vibration energy EV is greater than rotational energy ER, यानी सबसे ज्यादा एनर्जी किसी होगी, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी का। तो सीधा सा बात है HCl and CO give rotational spectrum microwave रीजन। ये एग्जांपल है बेटा, ये रोटेशन शो किया है मैंने, नेगेटिव टू पॉजिटिव, और इधर किया है अगर नेगेटिव पॉजिटिव तो सबका ये साइन बन जाता है आपके। यानी एक बार घुमाया, देखिए कोई भी मॉलिक्यूल 360 पर आपको रोटेट कर सकता है। अगर 360 बाई n कर देंगे, नंबर ऑफ रोटेशन n होता है, तो उतना ही आपका एंगल चेंज होता चला जाएगा। यानी कि कोई मॉलिक्यूल रोटेशन कब कंप्लीट होगा, जब 360 एंगल वो कंप्लीट कर लेगा। इसी तरीके से HCl और CO आपके दो मॉलिक्यूल हैं, दे आर द लीनियर मॉलिक्यूल। तो क्यों माइक्रोवेव एक्टिव है, क्यों एक्टिव है, इनके पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट है। रीजन दे ड्यू टू द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एलिमेंट्स। हाइड्रोजन और Cl इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है, कंपैरेटिवली C एंड O यहाँ भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है। तो बेटा आपका क्या होगा यहाँ पर, माइक्रोवेव एक्टिव। क्यों, क्योंकि यहाँ पर परमानेंट डाइपोल मोमेंट आपके पास होगा। इस तरह HHCl मतलब हाइड्रोजन गैस और C गैस डोंट गिव रोटेशनल स्पेक्ट्रम माइक्रोवेव इनएक्टिव। क्यों नहीं देते हैं, कि यहाँ पर डाइपोल मोमेंट नहीं होता। ये क्या देगा बेटा, ये दोनों ही कंपाउंड आपके ये देंगे आपके रमन स्पेक्ट्रम, क्योंकि रमन स्पेक्ट्रम किस पर डिपेंड करता है, नॉट डिपेंड ऑन द डाइपोल मोमेंट बट डिपेंड ऑन द पोलराइजेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। एक छोटा सा और मैं इसको दिखा, एक मैंने HCl मॉलिक्यूल लिया है, HCl मॉलिक्यूल को मैंने यहाँ रोटेशन के थ्रू मूव करा रहा हूँ, इसमें मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो ये आपका देख रहे हैं, ये निगेटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव है साइन, ये नेगेटिव साइन है, यानी कि ये हाइड्रोजन के लिए है पॉजिटिव साइन, ये क्लोरीन के लिए नेगेटिव साइन। तो इसका रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है, पॉजिटिव की तरफ ये पॉजिटिव साइन लेते हैं और नेगेटिव तरफ ये एरो बनाते हैं। इसका रीजन भी है कि ये एक साइन और शो करता है, ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ में, तो ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करता है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो इस साइन ये भी समझ सकते हैं, जो हाइड्रोजन का जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है वो क्लोरीन की तरफ मूव करता है। तो इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव साइन से शुरू होगा और ये एरो नेगेटिव साइन की तरफ जाएगा। तो ये जो पहला जो पिक्चर है, तो रोटेट कराएं इसको, तो ये हमने क्या है आपका 90 ये घुमाया मैंने इसको इस तरीके इधर,
यानी 90 एंगल घुमा दिया, तो 90 एंगल घुमाया तो ये नेगेटिव यहां पहुंच गया, लाइक दैट दैट्समैन। ये देख लीजिए, जैसे ये वाला इसको घुमाए तो इसको ये अगर नेक्स्ट 90 एंगल घुमाएंगे क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो आपका क्या होगा, इस तरीके से ये हो जाएगा। अगले फिर घुमाएंगे तो फिर ये ऐसे घूम जाएगा, फिर ये, फिर अगेन 90, फिर अगेन 90, फिर अगेन 90, यानी कि इसको घुमाते जाएंगे तो हमारा लास्ट ये वाली पिक्चर बन जाती है। तो यानी कि यहां पर आके पूरा एक 360 एंगल कंप्लीट हो गया। इसे बोलते हैं रोटेशन ऑफ मॉलिक्यूल। एक छोटा सा एग्जांपल मैंने लेकर दिखाया है आपको कि यहाँ पर रोटेशन ऑफ मॉलिक्यूल इस तरीके से मूव करता है। बेटा ये है लीनियर, HCl लीनियर मॉलिक्यूल है, ध्यान समझना। ये अब लीनियर मॉलिक्यूल है, लेकिन हम इसे 3D में काम करेंगे। 3D में काम करेंगे तो आपका 3 एक्सिस आएंगे, एक्स वाई जेड। तो फिलहाल ये हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस के थ्रू रोटेशन हो रहा है, तो इसका मतलब रोटेशन होगा अराउंड द बॉन्ड एक्सिस। इसी तरीके से अगर कोई मॉलिक्यूल रोटेट करता है, ध्यान समझना, अगर कोई मॉलिक्यूल रोटेट करता है तो वहां पर एंगुलर मोशन आ जाता है। अगर मॉलिक्यूल लीनियर मोशन में करता है तो लीनियर मोशन आ जाएगा। यानी कहने का मतलब है अगर कोई मॉलिक्यूल रोटेट करेगा तो एंगुलर मोशन, या कोई मॉलिक्यूल लीनियर ही रोटेट कर, लीनियर ही मूव कर रहा है तो लीनियर मोशन। एंगुलर मोशन में आपका एंगल चेंज होता है थ्रू एंगुलर मोमेंटम। लीनियर मोशन में भी मोमेंटम चेंज होता है थ्रू लीनियर मोमेंटम। तो यहां पर ये दिखाया गया है, ये लीनियर मोशन दिखाई गई है, ये आपका एंगुलर मोशन दिखाई गई है। तो अगर ध्यान से आपने पढ़े होंगे, ये फिजिक्स से रिलेटेड है थोड़ा सा। वी नो दैट लीनियर मोमेंटम P इज इक्वल टू m इंटू वी। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, वेयर m इज द मास ऑफ द मॉलिक्यूल, मास ऑफ द एटम, और v इज द लीनियर वेलोसिटी। और रोटेशनल मोमेंटम की बात करें तो ये हो जाएगा I ओमेगा, वेयर I इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी। अब आपको इसी में ही वर्क करना है। फिर देख लीजिए, यहाँ पे भी मैंने दिखा रखा है लीनियर वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम, एंगुलर वेलोसिटी रेडियन अपॉन टाइम, लीनियर मोमेंटम P इंटू एम बी, एंगुलर मोमेंटम I ओमेगा। ये I है मोमेंटम इनर्शिया, वेयर मोमेंटम इनर्शिया इज द I इज इक्वल टू mr स्क्वायर। आपको सर ये कैसे, सपोज HCl आपका मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन से Cl, तो हाइड्रोजन से Cl के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज बॉन्ड लेंथ। और यहाँ पर भी बेटा आपकी जो R है वो वही डिस्टेंस है, बॉन्ड लेंथ ऑफ द बिटवीन टू एटम्स। मास क्या है, इट है रिड्यूस मास, दोनों एटम का मास। और रिड्यूस मास होता है 1/μ इज इक्वल टू 1/m1 प्लस 1/m2। ये आगे वाली फिगर में आपको दिखाएंगे। ये देखिए, दो हमारे एटम हैं, इसको आप H मान लीजिए, इसको Cl मान लीजिए। Q और P ये आप रोटेट करेंगे तो इसमें जो आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो आएगा सिग्मा mi/r²। आप मैथमेटिशियन हैं तो समझ सकते हैं, ये ith मॉलिक्यूल के लिए लिया गया है, वेयर r इज द डिस्टेंस फ्रॉम I टू I रोटेशन एक्सिस m। जो मास है वो kg में है दोनों एटम्स का। तो एंगुलर मोमेंटम I ओमेगा, आप पहले देखें, ओमेगा 2 पाई न्यू, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है। फिर यहाँ देख लीजिए एक बार, कंसिडर मॉलिक्यूल विद द मासेस ऑफ m1 m2। अब यहाँ पर्टिकुलरली लेके चल रहे हैं m1 और m2, m1 ये m2 ये, और दोनों के बीच की डिस्टेंस r0 है। यहाँ पर आप इसे r भी पढ़ लीजिए, r भी बोल सकते हैं, कहीं कहीं r भी आपको मिलेगा, कहीं r0 मिलेगा। r0 क्या है, r1 प्लस r2। तो ये क्या हो गया, अगर एक एटम ये हाइड्रोजन है, दूसरा एटम ये क्लोरीन है, तो ये बॉन्ड लेंथ हो गई आपकी। तो C इज द सेंटर ऑफ मासेस, जिसे यहाँ पर रिड्यूस मास निकल के आएगा, जिससे आंसर हो रहा है सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी होगा सेंटर ऑफ मासेस। तो r0 इज इक्वल टू r1 प्लस r2, body is a not elastic bond. For rotation about the center of gravity C,
तो M_R1 इजकल टू M2R2, M1R1 इजकल टू M2R2। तो यहाँ जो वैल्यू निकाली गई है तो ये निकल के आई वैल्यू। इस वैल्यू का हमने निकाला मोमेंटम इनर्शिया अबाउट सी। सी इस पॉइंट के रिगार्डिंग हमें मोमेंटम इनर्शिया निकाला है, तो आया है ये आई सी इजकल टू M1R1 स्क्वायर M2R2 स्क्वायर M2 बराबर दोनों को कर दें तो बराबर हो जाता है। तो वैल्यू निकल के आती है आई इजकल टू M1 अपॉन M2 M1 प्लस M2 आर नॉट स्क्वायर, दिस इज म्यू आर स्क्वायर। म्यू आर स्क्वायर, आर का मतलब है बॉन्ड लेंथ, यहाँ आर नॉट है। इसलिए अगर रिड्यूस मास को देखा वाली बात का 1 म्यू इजकल टू 1 अपॉन M1 प्लस 1 अपॉन M2। तो रिड्यूस मास हो गया। M1 आप हाइड्रोजन मान लीजिए, M2 आप क्लोरीन मान लीजिए। अगर दोनों का एग्जाम्पल लेके चलें तो ये आता है मोर डिटेल्ड डेरिवेशन, ये और ज्यादा हमने निकाला है। तो आप फिलहाल इतना समझिए, तो ये आ जाता है आई इजकल टू म्यू आर स्क्वायर। ये और कैसे आया ये मैंने और इसको डिटेल में करके दिखा दिया है, तो इसको ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, केवल आप मेन रिजल्ट याद रखिए आई इजकल टू म्यू आर नॉट स्क्वायर। और फिर म्यू हमारा होगा 1 अपॉन म्यू इजकल टू 1 अपॉन M1 प्लस 1 अपॉन M2। दोनों को अगर देखेंगे तो म्यू इजकल टू आ जाएगा यही M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2। ये बिल्कुल देखिए, अभी मैंने यहाँ पर रोटेशन शो कर दिया है M1 M2 के साथ में। कंटिन्यूस का कंटिन्यूएशन पार्ट है, जो कंटिन्यूएशन पार्ट है तो आपका जो श्रोडिंगर इक्वेशन आपने पढ़ा होगा क्वांटम केमिस्ट्री में, तो ये एनर्जी का फार्मूला निकालते हैं ई जे इजकल टू एच स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर आई। आई यहाँ पर है मोमेंटम इनर्शिया, जे इंटू जे प्लस 1। जे यहाँ पर है रोटेशनल क्वांटम नंबर, ई जे हमारा रोटेशनल एनर्जी लेवल फॉर रिजिड रोटेटर, यानी जब कोई भी मॉलिक्यूल रोटेट करता है तो रिजिड रोटर की तरह मानते हैं उसको, रिजिड रोटेटर या रिजिड रोटर। तो जे हमारा रोटेशनल क्वांटम नंबर 012, आई मोमेंटम इनर्शिया दैट इज म्यू आर स्क्वायर, ऑलरेडी हम बता चुके हैं। इसको मैंने शॉर्ट में यहाँ शो कर दिया है M1R2 M1 M2 ये रोटेट करेगा तो वो आपका 360 एंगल तक रोटेट करेगा। और ध्यान रखना जब भी कोई मॉलिक्यूल रोटेट करता है तो तीनों एक्सिस के अराउंड रोटेट करता है, आइदर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो अभी आगे आएगा कि कैसे कोई मॉलिक्यूल रोटेट करता है। रिड्यूस मास इजकल टू M1 M2 ये पहले हम बता चुके हैं। ये इंटरमोलर डिस्टेंस दैट इज बॉन्ड लेंथ ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं। और रोटेशनल एनर्जी इज नॉर्मली एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ सेंटीमीटर। ये देखिए, ये रिकॉल कर रहा हूं मैं, E इजकल टू एच न्यू, ऑलरेडी हम लास्ट जो पहली सबसे पहले जो स्पेक्ट्रस को उसमें इंट्रो बताया उसमें बताया था एच सी इजकल टू E इजकल टू एच न्यू, वेयर न्यू इजकल टू सी अपॉन लैम्डा। यहाँ पे एक स्टेप नहीं है, सी अपॉन लैम्डा। तो लैम्डा होता है 1 अपॉन, यानी 1 अपॉन लैम्डा होता है ये न्यू बार। न्यू बार होता है आपका वेव नंबर। तो आप देखेंगे तो न्यू बार इजकल टू ये आपका ये बन जाएगा, इसे आप साइलेंट भी बोल सकते हैं, आप न्यू बार ही समझिए, ई अपॉन एच सी। ये इस वैल्यू को अगर वेव नंबर आपको कैलकुलेट करना है तो अगर ये जो वैल्यू है इस वैल्यू में अगर वैल्यू लगा देंगे तो वैल्यू निकल के आएगी आपकी ये म्यू बार इजकल टू एच अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई इंटू सी जे इंटू जे प्लस 1। इसी तरीके से ये वाली ईजे है, तो आप क्या करेंगे, अगर इसको हम v मान लें, h अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई सी को b मान लें, तो यहाँ b की वैल्यू रख दें, तो वेव नंबर इजकल टू b इंटू जे प्लस 1 और b इजकल टू ये आगे मैंने और अलग से कर रखा है, यहाँ नहीं दिख रहा होगा आपको, ये देख लीजिए। ये मैंने निकला आई, ये ओवरऑल आपका मोमेंटम इनर्शिया है। ये आपका आई इक्वल टू मोमेंटम इनर्शिया म्यू आर स्क्वायर है, यहाँ पर आर नॉट भी कर सकते हैं, आर भी कर सकते हैं। ये रिड्यूस मास है आपका, ये आपका एनर्जी का फार्मूला है एच स्क्वायर, एच प्लांक कांस्टेंट है यहाँ पर 8 पाई स्क्वायर आई मोमेंटम से, जे हमारा रोटेशनल क्वांटम नंबर, और ये फार्मूला यहाँ से निकाला है, ये फार्मूला यूज किया मैंने, ये तो ये वाला फार्मूला आ गया, यानी कि ई की वैल्यू यहाँ लगा दी तो ये आया। तो यानी म्यू इक्वल टू बी एच अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई सी इज द बी।
और EJ इजकल टू J+1 EJ टू बी J+1। तो ये फार्मूला, ये EJ क्या है, ये दिस इज द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू रोटेशनल लेवल, EJ+1 EJ, यानी J की जगह अगर 0 1 2 3 लगाते चले जाएंगे आप, तो आपके डिफरेंट रोटेशनल एनर्जी लेवल मिलते चले जाएंगे, लाइक दैट। देखिए J0 और J+1 से आपको काम करना है, तो क्या आ गया,